Assalamu guys, hope so you are well. So today we are going to discuss medieval period. In the early on video we discussed in detail Anglo-Saxon period. We discussed the introduction of Anglo-Saxon period, notable works, characteristics, comparative analysis and many more in the Anglo-Saxon period. So if you have not watched that video, I will provide a link in the description so you can also watch. Anyhow, let's move on to the today's lecture that is on medieval period. Here is a table of contents that we are going to discuss in today's lecture. The first one is introduction, then notable works, characteristics, innovations, comparative analysis, influence, impact on society, and significance at the end. First of all, we have an introduction of medieval period. This term describes a long period in European history spanning from the fall of the Roman Empire around the 5th century to the beginning of the Renaissance around the 15th century. This period duration is from 5th century to 15th century. ये एक लॉन्ग पीरियड है यूरोपियन हिस्ट्री में जो कि रोमन अम्पायर जब के फॉल से 5th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और रेनेसा तक ये जारी रहता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक है। इट इंक्लूड्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस इन यूरोप। द रिटन वर्क्स ऑफ medieval period is deeply influenced by religious beliefs, the hierarchical system of feudalism and the importance of knightly code, also known as cavalry code. अच्छा, फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट क्या है जी? अ सिस्टम इन विच पीपल वर गिवन लैंड एंड प्रोटेक्शन बाय पीपल ऑफ हायर रैंक एंड वर्कड एंड फॉट फॉर देम इन रिटर्न। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो हायर रैंक के जो लोग थे वो लोगों को हायर करते थे, ठीक है, लैंड देते थे, उन्हें प्रोटेक्शन देते थे और इन रिटर्न वो उनके लिए लड़ते थे। फ्यूडलिज्म इन शॉर्ट वर्ड्स वी कैन से जागीरदाराना निज़ाम था। ठीक है, द फ्यूडल सिस्टम प्रॉपर बिकेम वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स thanks to the Normans as their rule carved up and dished out lands whenever their armies conquered। फ्यूडलिज्म का सिस्टम जो है उस वक्त ज़्यादा फैलता है वेस्टर्न यूरोप में 11th सेंचुरी में, जब जो नॉर्मन्स जो थे उन्होंने ब्रिटेन पे हमला कर दिया था। ठीक है, जैसा कि हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड में पढ़ा था। तो जब नॉर्मन्स नॉर्मन्स कहते हैं नॉर्थ मैन्स को, ठीक है, तो जब उन्होंने हमला कर दिया तो ज़मीन जो थी उन्होंने तराशी और डिस्ट्रीब्यूट की, वसी पैमाने में उन्होंने जो है ज़मीनें डिस्ट्रीब्यूट की। कैलवरी फर्स्ट डिवेल्प एज अ कोड ऑफ ऑनर दैट एम्फसाइज ब्रेवरी, लॉयल्टी एंड जनरोसिटी फॉर नाइट्स एट वार इन द 11th एंड 12th सेंचुरी। ये कैलवरी क्या है, एक और कोड ऑफ ऑनर है जिसमें ब्रेवरी, लॉयल्टी और जनरोसिटी जो है नाइट्स नाइट्स कहते हैं सोल्जर्स को। ठीक है, ब्रेवरी, लॉयल्टी और जनरोसिटी की जो थीम्स जो थी ये मिडीवल पीरियड में काफ़ी वाइड स्प्रेड थी। नाइट्स वर medieval gentlemen soldiers to show bravery, strength, and skill in battle, to respect women, to defend the weak and the poor, be generous to others and loyal to their lord। नाइट्स जो थे वो medieval gentleman soldiers थे जो कि ब्रेवरी शो करते थे, स्ट्रेंथ को, उसके बाद बैटल में, जंग में जो अपनी स्किल्स वगैरह का शो करते थे। इस तरह वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं उनका था, उनकी करेक्टरिस्टिक में शामिल था। उसके बाद टू डिफेंड द वीक एंड द पुअर, टू जनरस टू अदर्स। So these were the characteristics of knight. Next we have key literary works. The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. This is essentially a collection of diverse stories. As pilgrims travel towards the shrine of Thomas Becket, they narrate various tales. Basically Canterbury Tales में group of pilgrims है, pilgrims कहते हैं हिजाज को, जिन्होंने जो ट्रैवल कर गए थे लंदन से कैंटरबरी में श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट की को विज़िट करने के लिए। ठीक है, उन्हें उनकी ज़ियारत करने के लिए। These stories offer a snapshot of the multifaceted medieval society, portraying a range of characters from different classes and professions। Obviously बात है कि ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स थे, उनकी अपनी क्लासेस थी, उनके अपनी प्रोफेशन थे, उनके अपने नॉर्म्स थे, कल्चर थे, तो वो कोलेक्टिवली थॉमस बैकेट की श्राइन के ऊपर वो गए। ठीक है, विजिट करने के लिए। तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो एक मिक्सअप कल्चर जो है वो हमें नजर आया। नेक्स्ट वी हैव द डिवाइन कॉमेडी बाय डेंट एलिगरी, अ विजनरी पोएम दैट एक्सप्लोर्स द जर्नी ऑफ द सोल थ्रू हेल, परगेटरी एंड हेवन, एड्रेसिंग थियोलॉजिकल एंड मॉरल थीम्स। ये एक विजनरी पोएम है जिसमें जो है सोल की जर्नी को एक्सप्लोर किया गया है, हेल में, उसके बाद हेवन में, और परगेटरी। परगेटरी हेल और हेवन की इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक है, तो इसमें थियोलॉजिकल और मोरल थीम्स को एड्रेस किया गया है। थियोलॉजिकल मीन्स रिलीजियस। नेक्स्ट वी हैव करेक्टरिस्टिक्स, कोर्टली लव,
This concept was central in the Middle Ages, emphasizing an idealized and often secret romantic affection between a knight and a noble woman. Courtly love, ये concept जो है मिडिल एजेस में काफ़ी सेंट्रल था कि इसमें जो था एक सीक्रेट रोमांटिक अफेक्शन था एक नाइट सोल्जर और नोबल वुमेन के दरमियान. दिस लव वाज करेक्टराइज्ड बाय डीप एडमायरेशन रिस्पेक्ट एंड इसमें respect, admiration, and often element of unattainability. The literature of medieval period often depicts the ideas of courtly loves, emphasizing the romantic and chivalrous relationship between नाइट्स एंड नोबल लेडीज़. हमें रोमांटिक और कैलवरिस रिलेशनशिप के बारे में बताता है नाइट्स और नोबल लेडीज़ के दरमियान, कोर्टली लव. ठीक है. उसके बाद एलिगोरी एंड सिम्बोलिज्म. एलिगोरी सिम्बोलिज्म भी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी मिडिल एजेस में. rather than being direct, a lot of medieval literature relied on symbols and allegories, stories with a hidden meaning, usually moral or political, to convey deeper messages, especially about morality, religious and spirituality. Next we have heroic epic. Large scale poems like Beowulf and the Song of Roland and the Song of Roland focus on heroic figures, their quests and battles. Such narratives celebrate values like honor, bravery and लॉयल्टी. हीरो एपिक्स की जो मेजर थीम जो थी वो ऑनर, ब्रेवरी और लॉयल्टी थी और हीरोइक की बैटल्स वगैरह को बताया गया है. ठीक है. Innovations. So what were the innovations in the medieval period? Arthurian legends. These are stories about King Arthur and his knights, and they became incredibly popular during this period. These legends were not only entertaining but also imparted moral lessons. Okay, next, poetic forms. Poets of this era experimented with various styles and structures, from ballads or story poems to sonnets and lyrics, short poems expressing personal emotions. अच्छा, बैलेड कहते हैं ऐसी पोइम जिसमें स्टोरी जो है यूजुअली 4 लाइन स्टैंजा यानी कि क्वाट्रेन में हमें बताई जाती है. ठीक है. तो इस एरा के जो पॉइंट्स जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और स्टाइल्स में वर्सटैलिटी लाए. ठीक है. उन्होंने बैलेट से सोनेट में कन्वर्ट किया. अब सोनेट जो है 14 लाइन पोइम है. सोनेट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं. ठीक है. एक होता है इटालियन सोनेट और एक होता है इंग्लिश सोनेट. इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं और उसी तरह से इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं. तो उन्होंने बैलेट से सोनेट में स्ट्रक्चर को चेंज किया. ठीक है. स्टाइल को चेंज किया और लिरिक्स में शॉर्ट पोइम्स, और लिरिक्स कहते हैं ऐसी शॉर्ट पोइम जो कि पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करे. तो बैलेट को उन्होंने सोनेट और लिरिक्स में उनके स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया. ठीक है. वर्नैकुलर लिटरेचर. वर्नैकुलर मीन्स इंडिजिनस. ठीक है. लोकल लैंग्वेज. बिफोर दिस पीरियड मोस्ट लिटरेरी वर्क्स वर रिटन इन लैटिन, लिमिटिंग देयर रीडरशिप. However, as more people learn to read, writers began using local languages, making literature more accessible to common people. अच्छा, उस पीरियड इस पीरियड से पहले ना जो मोस्ट लिटरेचर का था वो लैटिन में था. तो रीडरशिप करने में काफ़ी लिमिटेशंस थी. आम बंदा नहीं रीड कर सकता लिटरेचर. तो फिर ज़्यादातर लोगों ने जो है वो लिटरेचर को जो है वो लोकल इंडिजिनस लैंग्वेज में, वर्नैकुलर लैंग्वेज में राइट करना शुरू कर दिया, जिस तरह से लिटरेचर ज़्यादा असेसिबल हो गया में कॉमन पीपल में. नेक्स्ट वे हैव इन्फ्लुएंस. Christianity. Given that the church was a dominant force during the Middle Ages, Christians' beliefs deeply influenced literature. Many stories revolve around religious, moral, biblical tales and spiritual journey. Christianity काफ़ी अरूज पे थी मिडल एजेस में. ठीक है. उसको जो डीपली इन्फ्लुएंस जो है वो लिटरेचर पे भी पड़ा. क्रिश्चियंस का बिलीव्स डीपली इन्फ्लुएंस लिटरेचर. ठीक है. मैंने स्टोरीज जो थी वो रिलीजियस मोरल्स पे, बिब्लिकल टेल्स पे और स्पिरिचुअल जो जर्नी उन पे राउंड अबाउट रिवॉल्व करती थी. Classical literature. Even though this was the Middle Ages, writers were still inspired by old Greek and Roman works. They also read and were influenced by early Christian thinkers who combined classical and religious ideas. Middle Ages के जो poets थे वो classical literature से भी काफ़ी inspired थे और उन्होंने उनके beliefs और उनके ideas को अपने Middle Ages के literature में भी implement किया और utilize किया classical literature को. Next है impact on society. Cultural and intellectual preservation. In a time without the internet or easy access to books, medieval literature helped keep stories, ideas and the knowledge alive, passing them from वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ये ऐसा टाइम था मिडीवल पीरियड में जिसमें इंटरनेट या बुक्स वगैरह तक इजीली एक्सेस नहीं थी. ठीक है. तो मिडीवल लिटरेचर में जो है वो स्टोरीज, जो आइडियाज़, जो नॉलेज थे वो ओरली पास डाउन हो रहे थे फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस. बिकॉज मैनी पीपल कुड नॉट रीड एंड लेक डायरेक्ट एक्सेस
टू रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस टेल्स एंड डायडेक्टिक। जैसा कि जो लिटरेचर था वो लैटिन में था, तो आम कॉमन पीपल जो है वो इजीली रीड आउट नहीं कर सकते थे लिटरेचर को, ठीक है। ओनली जो टैलेंट को समझते थे वो ही रीड कर सकते थे। तो लिटरेचर जो है एंड डायडेक्टिक लिटरेचर हेल्प गाइड पीपल्स बिलीव्स एंड वैल्यूज, क्योंकि मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, बिकॉज मैनी पीपल कुड नॉट रीड एंड लेक डायरेक्ट एक्सेस टू रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस टेल्स। क्योंकि आम लोग जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट और रिलीजियस टेल्स को डायरेक्टली रीड आउट नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिटरेचर था वो ज़्यादा लैटिन में था। तो डायडेक्टिक लिटरेचर हेल्प गाइड पीपल्स बिलीव्स एंड वैल्यूज। तो लिटरेचर में जो है वो जब अपनी इंडिजिनस वर्नैकुलर लैंग्वेज को यूज़ किया तो लोगों के बिलीव्स और वैल्यूज़ को गाइड किया गया, ठीक है। और उनको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो गया लिटरेचर, और ईजिली उनको असेस मिल गई लिटरेचर को समझने में, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस, कोटलियन कल्चर्स इन्फ्लुएंस। अर्लियर पीरियड्स might have focused more purely on religious tales or Calvaric ideals, but as the medieval courts grew in influence, जो earlier period जो थे, literature began to reflect the values, intrigues एंड कंसर्न्स ऑफ द कोर्टली क्लास। अर्ली पीरियड के जो थे वो उनका मेजर फोकस जो था वो रिलीजियस टेल्स पे था, कैल्विक आइडियाज़ पे था। लेकिन जो मिडीवियल कोड जो थे वो उनका इन्फ्लुएंस बेसिकली वैल्यूज़ पे था, मॉरल्स पे था, ठीक है, और बिलीव्स पे था। ट्रांजिशन फ्रॉम ओरल टू रिटन, इसमें जो ट्रांजिशन हुई है वो ओरल लिटरेचर से रिटन लिटरेचर में था। अर्ली इन द मिडल एजेस स्टोरीज वर पास डाउन वर्बली। अर्ली ऑन जो था मिडल एजेस में लिटरेचर जो था स्टोरीज जो पास डाउन वर्बली होती थी, ठीक है। बट एज टाइम वेंट मोर वाज रिटन डाउन, प्रिजर्विंग स्टोरीज मोर एक्यूरेटली एंड फ्रॉम अ वाइडर ऑडियंस। तो फिर लेटर ऑन जो था इस पीरियड में लिटरेचर रिटर्न डाउन राइट फॉर्म में प्रिजर्व होना शुरू हो गया, महफूज होना शुरू हो गया। सो लेटर ऑन जो है वो लिटरेचर रिटन फॉर्म में प्रिजर्व होना शुरू हो गया, तो जो कि ऑडियंस के लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो गया। सिग्निफिकेंस, सो एट द एंड वी हैव अ सिग्निफिकेंस foundation for future literature. What was written during the medieval period set the stage for future European literature. It introduced genres, ideas, and storytelling methods that future writers would build upon. मिडीवल पीरियड में जो था जो लिखा गया था वो फ्यूचर यूरोपियन लिटरेचर के लिए एक बेस बना गया, ठीक है। इसमें जो मिडीवल पीरियड में डिफरेंट जॉनरास, आइडियाज़ और स्टोरी टेलिंग जो मेथड्स थे वो फ्यूचर राइटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए, और उन्होंने उन्हीं आइडियाज़ से, जॉनरास से नेक्स्ट जो है लिटरेचर पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद है विंडो इनटू द पास्ट। टुडे वी कैन रीड द लिटरेचर फ्रॉम द मिडल एजेस एंड लर्न अबाउट हाउ पीपल लिव्ड, व्हाट दे बिलीव्ड एंड व्हाट देयर सोसाइटीज़ वर लाइक। ये मिडीवल पीरियड जो है हमें ये बताता है कि उस पीरियड में लोगों की बिलीव्स क्या थे, उनकी सोसाइटीज़ किस तरह की थी, उनके आइडियाज़, उनकी आइडियोलॉजी किस पे बेस कर रही थी। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ medieval period. So this is all about the today's lecture. If you guys have any query you can ask me in the comment section. तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।